السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 13 اگست 2020۔ جن لوگوں کے سوالات 5 بجے شام تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال رہ جائے تو وہ ذاتی طور پر بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ محرم کے جلوس اور عید میلاد النبی وغیرہ کے جلوس نکالنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، لہذا اس کو بدعت کہنا یا منع کرنا میری سمجھ سے ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات واضح بتا دیں، اگر سارے ہندوستان کے مسلمان 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنے لگیں تو روزانہ 5 وقت جلوس بن سکتا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ دبدبہ بنانے کے بجائے اگر 5 وقت کا دبدبہ بنے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھیڑ سے دبدبہ بنتا ہے تو 5 وقت آپ نماز پڑھ لیجئے پابندی سے، سب لوگ جماعت سے، تو اپنے آپ دبدبہ بن جائے گا، لہذا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دبدبہ بنے یا نہ بنے، ہم اسلام کے نام پر کوئی کام وہ نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، لہذا وہ کتنا بھی اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی ایک تقریر میں سنا تھا کہ یہ قرآن مجید جس غلاف پہ رکھا جاتا ہے اسے جزدان کہتے ہیں، اور یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ میں بات آپ کی سمجھ نہیں پایا کہ آخر آپ نے اس کو جزدان کو کہنے کو کیوں منع کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ قرآن کریم مکمل نہیں ہے، یعنی 30 پارہ کا جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے۔ جو لوگ مکمل نہیں ہیں، یہ لفظ فارسی ہے، تو لہذا انہوں نے اس کا نام جزدان رکھ دیا۔ یعنی کیا کہ ایک ایسی کتاب جو مکمل نہیں ہے بلکہ ایک جز ہے، بقیہ اس کا باقی ہے، لہذا اس کو جزدان انہوں نے کہہ دیا۔ یہ حقیقت میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، لہذا اس کو یا تو غلاف کہنا چاہیے اور یا مصحف دان کہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جزدان کہنے والا گنہگار ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے جو کہ ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ میں جو لوگ مرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر نہیں دیتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ بات نہیں حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو لوگ جمعہ کے دن انتقال کرتے ہیں ان سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا ہے۔ سوال جواب نہیں ہونا الگ چیز ہے، عذاب قبر نہیں ہونا الگ چیز ہے۔ تو پھر کب ہوتا ہے ان سے سوال جواب؟ اس پر 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ختم ہو جاتا ہے تو سوال جواب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب قیامت تک اس سے سوال جواب نہیں ہوگا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، اور لوگ اس کو فضیلت پہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب سونے کو مانا جائے یا چاندی کو، کیونکہ سونا اور چاندی میں اب ریٹ میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا میں 52.5 تولہ چاندی ملتی تھی، دونوں برابر تھے، لیکن آج 7.5 تولہ سونا میں کئی کلو چاندی مل جائے گی، لہذا گھر کے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے، لیکن اس پر میری ذاتی رائے یہ ہے، اور بھی بعض علماء جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سونے کو معیار بنایا جائے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو وہ زکوٰۃ دے۔ چاندی
अगर उसके पास है तो उसमें कितना सोना खरीद सकते हैं, चांदी को सोने में तहवील किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, लेकिन सोने को मेयार बना जाए, फतवा इस पर नहीं है। लेकिन आज नहीं कल फतवा इस पर आना ही आना है, क्योंकि अब बहुत बड़ा फर्क आ गया है। लोग दलील में ये बात कहते हैं कि अगर चांदी को मेयार बनाएंगे तो गरीबों का बड़ा फायदा है। बात पहले मरहले में बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर चांदी को आप मेयार बनाएंगे तो कितने गरीब ऐसे हैं कि जो साहिब निसाब हो जाएंगे और उनको ज़कात मिल ही नहीं सकती है। उस बात को लोग सामने नहीं रखते हैं, लिहाजा सोना ही मेयार होना चाहिए। वल्लाहु आलम। पूछा गया है कि मुहर्रम का महीना आने वाला है, मौलाना साहब क्या मुहर्रम कोई त्योहार है? और मुहर्रम में जो लोग जो भी हरकतें करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसकी शरई हैसियत क्या है? और पूछा है कि हमारे आला हजरत ने इसके बारे में क्या लिखा है। सारी बातें समझ लीजिए कि मुहर्रम कोई भी इस्लामी त्योहार नहीं है। नंबर एक, मुहर्रम में जो कुछ भी आप करते हैं सब नाजायज है। मुहर्रम के 10 तारीख को जो रोजा रखा जाता है, लोग समझते हैं कि इस दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, लिहाजा रोजा रखा जाता है। एकदम गलत बात है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के तकरीबन 60 साल के बाद शहीद हुए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा जो है वो मक्के में भी रहते थे और मदीने में भी रहते थे। रोजा रखने की वजह जो है वो नहीं है, बल्कि 10 तारीख को हरम काबा का खिलाफ बदला जाता था, उसकी वजह से लोग रोजा रखते थे। रोजे रखने की वजह हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत नहीं है। अब आला हजरत के बारे में जो उन्होंने कहा है कि हमारे आला हजरत, हकीकत ये है कि हमारे अगर बरेलवी उलमा हजरात आला हजरत की बातें नकल कर दें, क्योंकि जो भी मुहर्रम मनाते हैं सुन्नी हजरात, हम उन लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहते, हर आदमी का अपना अपना अकीदा है, लेकिन सुन्नी हजरात जो इसमें शामिल होते हैं और ये समझ करके कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत ने अपनी किताब में, अपने फतावे में लिखा है कि उनसे पूछा गया कि अगर मुहर्रम के जुलूस में जाया जाए, दुलदुल में जाया जाए, बहुत सी चीजें अलग अलग इलाके में, उन्होंने कहा सब हराम है। सब क्या है? हराम है। लेकिन मनाते कौन हैं ये बातें, दुलदुल निकालते कौन है, बाजा बजाते कौन है? सब सुन्नी हजरात हैं। बहुत से हमारे सुन्नी उलमा से मेरी बात होती है, मैं कहता हूं कि जब आला हजरत का ये फतवा है तो आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत ही जो क्लोज होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि मौलाना साहब अगर हम ये बात बोलने लगेंगे तो लोग हमको देवबंदी कहेंगे। तो हमने कहा आला हजरत की बात नकल करके तो बोलो कम से कम, लेकिन आला हजरत की बात नकल नहीं की जाती। आला हजरत ताजिया बनाना, ताजिया उठाना, ताजिया में शरीक होना, ताजिया के जुलूस में जाना, मुहर्रम में बतौर, उनसे पूछा गया कि कोई आदमी सिर्फ ऐसे ही तफरीहन जुलूस में शामिल हो जाए, उन्होंने कहा वो भी हराम है, वो भी हराम है। उलमाए देवबंद इतना सख्त हराम का फतवा नहीं देते हैं जितना आला हजरत ने हराम का फतवा दे रखा है। बहरहाल हमारा काम है बताना, लोग माने या ना माने। क़यामत में लोग यह ना कहें कि मैं मौलाना सिराज साहब की गुफ्तगू सुनता था और वो भी इसके बारे में हमको कुछ नहीं बताए, हमने वो बात आप तक पहुंचा दी। पूछा गया है कि बात तकरीरों में सुना है कि जिसका कोई पीर नहीं है उसका पीर शैतान है, इसकी क्या हकीकत है? अगर ये जुमला सही है, ये कोई हदीस नहीं है, तो लोगों ने बना लिया है। सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पीर कौन है? अगर ये बात है जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, तो अबू हनीफा नौजुबिल्लाह और अबू हनीफा के पीर शैतान हो जाएगा। जिसकी बात, जिसके आप जिसको मानते हैं कि हम उनकी इख्तदा करते हैं, उनकी इमामत को तस्लीम करते हैं, फिर इमाम मालिक का भी कोई पीर नहीं है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, किस सियासत्ता के मुहद्दिसीन का किसी को कोई पीर नहीं है। तो ये सब फिर क्या हो गए? ये सब बेपीर के हो गए। तो ये जो बेपीर के जो लोग हैं जिनको आप शैतान कह रहे हैं नऊजुबिल्लाह, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है और बहुत बड़ी झूठी बात है।
दूसरा सवाल किया गया है कि मौलाना साहब तकरीरों में ये कहते सुना है कि शैतान भी नमाज बहुत पढ़ता था और रांदे दरगाह हो गया। मतलब वो कमेंट करते हैं कि सिर्फ नमाज जो आप लोग पढ़ते हैं, देवबंदियों पर कमेंट करते हैं कि तुम बहुत नमाजी बनते हो, नमाज तो शैतान भी पढ़ता था, लेकिन उसके बावजूद क्या हो गया, रांदे दरगाह हो गया। इसका जवाब सुन लें। जब तक वो सजदा करता था, नमाज पढ़ता था, हालांकि कहीं नमाज का जिक्र नहीं है हदीस में। लोग बोलते हैं शैतान इब्लीस चप्पे चप्पे पे सजदा किया है, अल्लाह मालूम कहाँ है। चलो हम मान लेते हैं चप्पे चप्पे पे सजदा। जब तक वो सजदा करता रहा तब तक तो अल्लाह का बड़ा करीबी था। जिस दिन सजदे को इनकार किया उस दिन शैतान बना। तो आप ये जुमला कैसे कह रहे हैं कि नमाज शैतान जब तक पढ़ता था और न उसके बावजूद नमाज काम नहीं है? नमाज ही काम आई उसके, कि जब तक वो नमाज पढ़ता रहा तब तक वो क्या है, अल्लाह का मुकर्रब रहा। और जब उसने एक सजदा करने को इनकार कर दिया तो नतीजा क्या निकला, रांदे दरगाह हो गया। ये इसकी हकीकत है। एक साहब ने पूछा है कि हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होकर के मरता है, तो क्या वो शहीद है? ये बात शायद जो साहब ने पूछा है उनको कंफ्यूज हुई है। जिस बीमारी को वबा कहते हैं, जैसे कोरोना एक बीमारी है जो वबाई शक्ल में है, कि एक से दूसरे को और हजारों को और लाखों को और करोड़ों को अपने, जैसे कि ताउन आता था पहले, वो जो वबाई बीमारी में मरते हैं उसके बारे में हदीस है कि उनका जो मरना है वो शहादत है। इसी तरह कोरोना में भी जो लोग इंतकाल कर रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि वो शहादत का मर्तबा पाएंगे। पूछा गया क्या एक मस्जिद में दो जमात हो सकती है या नहीं? जिन हालात से हम गुजर रहे हैं और खासकर यूपी में अभी भी 5 और 7 से ज्यादा नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब अगर 5-7 के अलावा मस्जिद में नमाजी हैं तो उसकी टाइम बदल ली जाए। मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज है, एक नमाज 1:15 बजे पढ़ ली जाए, दूसरी नमाज 1:30 बजे पढ़ ली जाए, तीसरी नमाज 1:45 पे पढ़ ली जाए। इमाम अलग हो, जगह अलग हो। मतलब एक इमाम 2 फर्ज की नमाज नहीं पढ़ा सकता, एक जगह से ना पढ़ावे, अभी यहां खड़ा होकर पढ़ाया है, दूसरे वक्त में थोड़ा सा आगे पीछे होकर के पढ़ावे। बहरहाल ऐसे हालात में एक मस्जिद में 2 जमात 3 जमात की जा सकती है। पूछा गया है कि आप उमूमन अपनी गुफ्तगू में इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो बात आप हक समझते हैं उस पर बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं मसलकन शाफी हूं, कि हनफियों के पास ज्यादा सही हदीस है या शवाफे के पास ज्यादा सही हदीस है? आप अपने मिजाज को मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिए। देखिए, ये एक हकीकत है कि अहनाफ के पास बनिस्बत शाफी रहमतुल्लाह अलैह के, शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर सही हदीस ज्यादा है। अहनाफ के पास जो है वो सही हदीस शवाफे के मुकाबले में नहीं है। ये एक हकीकत है, इसको हमको तस्लीम करना चाहिए। ये एक अलग बात है कि अहनाफ की जो बातें हैं उन बातों में अक्ली तौर पर दलाइल बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट हदीस की बात की जाए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास सही हदीस ज्यादा है। पूछा गया है कि क्या मनी के अलावा और भी किसी चीज के निकलने से गुस्ल वाजिब होता है या नहीं? आदमी के शर्मगाह से मनी के अलावा पानी जो निकलता है, या कोई बीमारी की वजह से खून निकल जाता है, या कभी छोटे कंकर निकल जाते हैं, इन मनी के अलावा किसी भी चीज के निकलने से जो है वो गुस्ल वाजिब नहीं होता है। वुदू टूट जाता है लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होता। पूछा गया है कि इमामत के लिए क्या शराइत है? तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो पूरी तकरीर करनी पड़ेगी। बुनियादी बात बता देते हैं। इमाम को कम से कम 3 बातें जरूर मालूम होना चाहिए, बल्कि 4 बातें। पहली चीज कि वजू के फराइज क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, नमाज के फराइज क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज में सजदा सहू वाजिब कब होता है, और नमाज हमारी टूटती कैसे है। 2।
اور بنیادی چیز کہ ہم قرآن مجید کی جو سورت پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کیا غلطی کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے نماز ہماری کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کہ زیر زبر کی کہیں غلطی ہوئی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کبھی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو فرق نہیں پڑتا ہے، کبھی ایک آیت سے کود کر حافظ صاحب دوسرے آیت پہ چلے گئے، فرق نہیں، لیکن وہ فرق ہر جگہ نہیں پڑتا ہے، کبھی کبھی معنی میں زبردست فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اتنا ان کو معلوم ہونا چاہیے جن صورتوں کو وہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے سے کہاں پہ نماز ہماری ہوئی اور کہاں پر نہیں ہوئی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور رہا تقویٰ ہے، طہارت ہے، قرآن کا زیادہ جاننا ہے، یہ اس وقت جب سارے لوگ اکٹھا ہوں اور سب متقی ہوں تو اس میں دیکھا جائے گا تقوی والا کون ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ مسائل کون جانتا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، پھر اس کی بہت سی لسٹ ہے۔ بہرحال یہ بنیادی باتیں ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بچوں کے کپڑے کے لیے ماڈلنگ کرنا کیسا ہے؟ یہ صاحب نے جو سوال کیا ہے سوال غیر واضح ہے۔ ماڈلنگ میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ اضافی طور پر دوبارہ سوال کریں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ہمارے علاقے میں بات بات میں یہ بات کہی جاتی ہے اللہ جانے نبی جانے، یہ جملہ ہم لوگ بولتے ہیں، ہمارے بھی کہتے ہیں اللہ جانے رسول جانے، یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے، شرک ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے بہت سی باتیں رسول نہیں جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ آج میری وفات ہونے والی، اللہ جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ حضور کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، حضور کو نہیں معلوم تھا کہ آج چچا کو لوگ اس طریقے سے شہید کر کے اور پھر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے، اگر وہ جان جاتے تو اپنے چچا کو لے کر کے نہیں جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ میں طائف جا رہا ہوں اور طائف میں لوگ ہمارے ساتھ ایسا برا برتاؤ کریں گے کہ لوگ ماریں گے، پتھر اتنا ماریں گے۔ تو یہ کہنا جملہ اللہ جانے رسول جانے یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزوں میں آپ بولیں کہ اللہ جانے رسول جانے، ہو سکتا ہے وہاں پہ معنی دیکھا جائے گا کہ کیا مطلب ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، کوئی پوچھے ہم بولیں کہ اللہ جانے رسول جانے، یہ جانے اللہ رسول کو کیا معلوم ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے، یہاں پر آپ نہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ جملہ صحیح ہو جائے، لیکن ہماری جو عادت پڑ گئی ہے کہ اللہ جانے رسول جانے، یہ بات ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جب ٹریفک سگنل پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو بہت سے فقیر آ جاتے ہیں، بامبے وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے، اب لاک ڈاؤن میں نہیں ہے لیکن ویسے فقیر آ جاتے ہیں۔ کیا ان فقیروں کو سود کی رقم جو بینک سے آتی ہے انٹرسٹ کی رقم وہ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی بھی رقم نہیں دینا چاہیے، یہ سب لوگ پیشہ ور ہیں، جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں یہ بھی ان کا ایک کام ہے، وہ پریشان ہیں، جو کچھ بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں سے 90% کون ہے؟ سب مسلمان ہیں مانگنے والے ہیں۔ یہ آپ نے ان کو دے کر کے ان کو عادت ڈال دی کہ آپ اسی دھندے میں لگے رہیں۔ ایک مرتبہ ہم فیض آباد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارا ایک بچپن کا ساتھی تھا، کافی دن کے بعد ملا تھا، میں جا کر کے وہاں دکان پہ ایسے بیٹھ گیا، 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، جمعرات کا دن تھا، تو فیض آباد میں جمعرات کے دن فقیر لوگ نکلتے ہیں مانگنے، تو میں بیٹھا تھا تو ایک غیر مسلم آیا، وہ غیر مسلم تھا تو اس نے اس کو بہت زور سے ڈانٹا اور بھگا دیا دکان پر سے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مسلمان مانگنے آیا تو اس نے اٹھا کر کے اس کو پیسے دے دیے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یار جب اس کا آدمی آیا تو اس نے بھگا دیا اور ہمارا آدمی آیا تو پیسے دے دیا۔ تو چونکہ بچپن کا ساتھی تھا اس نے کہا کہ احمد بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو دکھلانے کے لیے میں نے یہ کام کر دیا، میں آپ میرے دوست سے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ جو آیا تھا وہ ہمارا بھائی تھا ہندو، ہم نے اس کو اس لیے نہیں دیا کہ یہ کام چھوڑو، اگر ہم دینے کی عادت ڈالیں گے تو یہ کبھی کام نہیں چھوڑے گا، آپ والے کو اس لیے دیا کہ تم یہی کام کرتے رہو، یہ پالیسی ہے۔ لہذا
یہ جو دینے کا چکر ہے نہیں دینا چاہیے. جیسے ہر مسجد کے دروازے پر بڑے شہروں میں بھیک مانگنے والے رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سے گھر سے پھٹکر لے کے جاتے ہیں جیب میں، 4 آنا 8 آنا ایک ایک کو بانٹتے چلے جاتے ہیں. جب آپ نے 4 8 آنا سینکڑوں لوگوں نے دیا تو آپ نے بتایا کہ اگلے جمعہ پھر آنا، اور یہ کام کرتے رہنا. یہ جو آپ ریوڑی کی طرح بانٹ رہے ہیں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، آپ نے غلط کام کیا ہے. اگر آپ کو پیسہ دینے کا شوق ہے تو آپ تحقیق کریں کہ آپ کے محلے میں کون پریشان ہے. وہ آدمی جو بیچارہ کسی سے کہہ نہیں سکتا اس کی تحقیق کریں، اس کی جا کر کے مدد کریں. یہ جو آپ کر رہے ہیں تو پیشہ ور لوگ ہیں، اور اس میں سے ایک بڑا طبقہ آپ کا پیسہ پاتا ہے اور شراب پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے، ایک بڑا طبقہ. لہذا یہ پیسہ دینا کوئی ثواب کا کام میری سمجھ سے نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ میری بیٹی کا نام ایزا فاطمہ ہے، یہ نام کیسا ہے؟ نام بھی غلط ہے. یہ ایزا کے معنی تو تکلیف دینے کے ہوتے ہیں، یہ نام ایک دم غلط ہے، بدل دینا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں ٹخنا ڈھکا ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ٹخنا ڈھک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی. پوچھا گیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث اگر آپ کی نگاہ میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 10واں 20واں 30واں 40واں برسی منائی ہو تو وہ حدیث آپ ضرور بیان کریں. یہ ایک دم غیروں سے ہندوؤں کے یہاں بھی برسی منائی جاتی ہے. جو تیجا لفظ آپ بولتے ہیں، تیجا منانا، تیجا سنسکرت کا لفظ ہے. تویش سے تیجا ہے، تیسرے دن. یہ غیروں کے یہاں بھی ہوتا ہے، اسی سے آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. اربوں بیچاروں کو یہ سب کچھ نہیں معلوم ہے. تیجا 10واں 20واں 40واں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یہ ٹوٹل جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تیجا نہیں منایا، ان کو لفظ بھی نہیں معلوم ہے. نہ تیجا لفظ کی عربی موجود ہے، نہ 40واں کی عربی موجود ہے. یہ صرف ہمارا بنایا ہوا سب اپنا دھندا ہے. غیروں سے ہم متاثر ہیں، لہذا ہم جو ہے انہی کے طریقے پہ چلتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ محرم میں گھروں پہ جھنڈا لگانا کیسا ہے؟ جھنڈے کے بارے میں آپ کو اسلام کی بنیادی سوچ تو چلا جائے، پھر ہم نہیں سوال کر پاتے، سو نہیں، ورنہ پھر ہم سے ہوتا نہیں ہے. پوچھا گیا کہ محرم میں جھنڈا لگانا کیسا ہوتا ہے، کیسا ہے؟ دیکھیں، جھنڈے کا جو تصور آپ نے کیا ہے کہ کوئی موقع ہو تو آپ جھنڈا لگا لیں، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام میں جھنڈے کا تصور صرف اور صرف کیا ہے کہ جب جنگ ہوگی تو جھنڈا نکلے گا، یا سفید ہوگا یا کالا ہوگا. امن کے لیے صلح کرنی ہے، سفید جھنڈا لہرایا جائے گا، ورنہ کالا جھنڈا لے کر کے چلتے ہیں. بقیہ یہ جو آپ نے عید میلاد النبی پہ جھنڈا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون سے کلر کا جھنڈا لگا ہے. عید میلاد النبی میں جھنڈے کا نہ ڈیزائن آپ کو معلوم ہے. بعض لوگ لنگوٹ کی طرح مسلمان بھی جھنڈا مسجد پہ لگا رہے ہیں، جیسا کہ مندروں پر یا بڑے بڑے درختوں پر لگا رہتا ہے. کبھی وہی کلر لا کے لگا دیتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ عید میلاد النبی میں سارے کلر ملا کے جھنڈا بنا دیا، کیونکہ اسلام میں اگر ہوتا جھنڈا تو کلر معلوم ہوتا، اور جو اصل کلر ہے وہ کوئی نہیں لگاتا. یعنی کالا جھنڈا کوئی نہیں لگاتا. محرم میں لوگ کالا جھنڈا لگاتے ہیں. تو جھنڈا گھر پہ لگانا کوئی بھی اسلامی تصور نہیں ہے، نہ جھنڈے کی کوئی فضیلت ہے. پوچھا گیا کیا نماز غائبانہ اس کرونا کے حالات میں جائز ہے یا نہیں؟ میری سمجھ سے اگر ایسی جگہ پر جہاں پر حکومت کی پابندی ہے اور کرونا کے میں مرنے والوں کے لیے وہ آپ نماز پڑھنے کی اجازت 20-25 آدمی کے علاوہ نہیں دیتے ہیں، ایسی شکل میں چونکہ جب ایک آدمی دوست ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، جب وہ نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو دل سے کیا ہوتا ہے، سکون ہو جاتا ہے. لہذا ایسے موقع پر امام شافعی کا مسلک بھی ہے، حدیث بھی موجود ہے. لہذا ہم کو اپنے مسلک پر اڑے نہیں رہنا چاہیے. کہیں اگر ایسا موقع آ جائے تو ہم کو نماز جنازہ غائبانہ پڑھ لینا چاہیے.
पूछा गया है कि बालों में ब्राउन कलर लगाना कैसा है। काले को छोड़कर कोई भी कलर आप लगाएं, इस्लाम में मना नहीं है। कोई भी कलर लगाया जा सकता है काले के अलावा। पूछा गया है कि बहुत सी हदीसों में निकाह और रुखसती का वक्त अलग अलग है, क्या आज भी ऐसा मुमकिन है? एकदम मुमकिन है। निकाह आपने कर लिया, 6 महीने के बाद रुखसती करे, 2 साल के बाद रुखसती करे, ये मुमकिन है। ये इस्लामी तरीका भी है। कोई अगर करना चाहे, किसी वजह से निकाह जल्दी करना चाहता है, रुखसती 6 महीने के बाद करना चाहता है, कर सकता है। पूछा है कि क्या वलीमा करना जरूरी है? वलीमा करना सुन्नत है, जरूरी नहीं है। और आप जो समझते हैं कि वलीमा में जब तक ना बुलाया जाए अम्मी को, खालू को, चचा को, फूफा को, तब तक वलीमा नहीं होता है। शादी हो गई, एक आदमी अपनी बीवी से मिल लिया, उसके दूसरे दिन 4 आदमी बैठ करके चाय भी पिए नियत से, वो पिलाने वाला कि भैया ये हमारा वलीमा है, वलीमा हो जाता है। वलीमा के लिए न गोश्त काटना जरूरी है, न वलीमा के लिए नान पकना जरूरी है। बैठे बैठे कह दे कि भाई बुला लिया 10 आदमी को, 5 आदमी को, घर के 4-5 लोग बैठ करके भी अगर कर देंगे तो वलीमा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी हुई सफर में, दोपहर का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा भाई ऐसा करो कि जिसके जिसके पास जो जो खाना है ले आओ। कोई सत्तू ले आया, कोई खजूर ले आया, लगा दिया गया कि भैया ये वलीमा है, ये वलीमा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वलीमा ऐसे कर सकता है, हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है? ये तो हमने दीन को चूंकि मुश्किल बनाया है, लिहाजा हम भुगत रहे हैं, परेशान हैं। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और रोटी से भी वलीमा हो गया है, सत्तू में कोई मीठी चीज डाल दी गई उससे भी वलीमा हो गया है। और अगर गोश्त पकाया गया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं नाजायज है, लेकिन सवाल जो किया गया है कि क्या वलीमा करना जरूरी है, जरूरी नहीं है। पूछा गया है कि भारत में जो तालीमी पॉलिसी आई है, वो जो तब्दील किया गया है, इसका हल क्या है? देखिए सही बात तो यह है कि अभी वो पॉलिसी क्योंकि 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है, अभी वो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो आपने पढ़ा हो, मेरे इल्म में अभी तक नहीं आई कि बुनियादी बात क्या हुई है, क्या तब्दीली आई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन अभी और खराब आने हैं तालीम के बारे में। उसका मसले का हल अभी से सोचें, और वो एक हल है कि अपनी इस्लाम की सारी किताबें, जो भी किताबें हैं, वो आप अपने इलाकाई जबान में उसका अनुवाद और तर्जुमा कर लें। नहीं समझे बात? हमारे पास, हमको उर्दू से क्यों प्यार है? उर्दू कोई मुसलमानों की जबान तो है नहीं। उर्दू से प्यार की जो वजह है वो ये है कि इस्लाम अरबी के बाद इस्लाम की मालूमात किस जबान में है? उर्दू में है। लिहाजा हम दौड़ देते हैं भैया उर्दू सीखो ताकि दीन आ जाए। लिहाजा अब अगर ऐसे हालात हो रहे हैं कि आपको उर्दू पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो बेहतर यह है कि केरला वालों ने आज के बहुत साल पहले अपनी सारी इस्लामी किताबों को उन्होंने अपनी मलयालम जबान में क्या कर लिया? तर्जुमा कर लिया। जो उर्दू वो जानते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, समझते भी नहीं है। लिहाजा ये बुनियादी तौर पर करना चाहिए, बहुत तेजी से काम करना चाहिए कि कुरान की तफसीर, कुरान के तर्जुमे, हमारी इस्लामी किताबें, खुलफा जो कुछ भी हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में है, जो जिससे हो सके वो उर्दू में उसको क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो दीन को उर्दू में नहीं हिंदी में ट्रांसफर कर दे। और आने वाली नस्लें हिंदी जो जान रही हैं, हिंदी पर जोर दिया जा रहा है, लिहाजा वो हिंदी के जरिए ही इस्लाम को क्या कर लें? समझ लें। ये होना चाहिए, वरना इसके नतायज अच्छे बरामद नहीं होंगे। पूछा गया है कि छुप कर निकाह करना कैसा है, और जो हदीस में आता है कि निकाह को फैलाओ, इसका क्या मतलब है? देखें, छुप कर मतलब ये है इस्लाम में कि अगर 2 गवाह मौजूद नहीं हैं तो छुप कर हुआ है। 2 गवाह अगर मौजूद हैं हकीकत में तो ये छुप कर नहीं है। निकाह की सुन्नत तरीका ये है कि ऐलान किया जाए। जैसे निकाह का वक्त है, मस्जिद में ऐलान करें, अपने मोहल्ले में ऐलान कि भैया फला टाइम पर जो है वो निकाह है, ये ऐलान करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया वाशिल निकाह,
कि निकाह को आम करो, क्या ताकि लोग ये ना जाने कि ये भगा करके औरत लेकर आ गया है, कौन सी औरत है। अब होता क्या है, आज छुप कर लेते हैं, पता ही नहीं देते हैं, तो उसमें शक शुबा पैदा होता है। और वो जो छुप कर किया जा रहा है कि किसी को मालूम नहीं हो, ये सुन्नत के खिलाफ है। निकाह हो जाता है, निकाह हो जाता है, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूछा गया है कि महर की कम से कम मिकदार कितनी है। देखें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक महर की कम से कम मिकदार कुछ नहीं। एक लोहे का छल्ला भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक महर बन सकता है। हमारे नजदीक, अहनाफ के नजदीक 30 ग्राम 630 मिलीग्राम या ऐसे कुछ, 30 ग्राम 630 मिलीग्राम का मतलब तकरीबन समझ जाइए कि 36-37 ग्राम मिनिमम चांदी महर में होनी चाहिए। जो भी महर का रेट हो, चांदी का जो रेट हो, आप उस लिहाज से तय कर लें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ है कि महर कम से कम कुछ भी हो सकता है, हत्ता कि कोई आदमी कह दे हम अपनी बीवी को पढ़ा देंगे, वो भी महर बन सकता है। लोहे का छल्ला उठा कर दे दे, वो भी महर बन सकता है। हमारे नजदीक खैर दोनों के पास हदीसें हैं, इनके पास भी हदीस है, उनके पास भी हदीस है। पूछा गया है कि दूसरी शादी क्या पहली बीवी की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। ये बाद इलाकों में, बाद मुल्कों में निकाह के फार्म पे ये लिखा रहता है कि मैं दूसरी शादी अगर कभी करूंगा तो बीवी से इजाजत जरूर लूंगा। ये एकदम गैर फिक्री बात है। अगर दूसरी शादी पहली बीवी से इजाजत के बाद का की शर्त रख देंगे तो पहली वाली कभी इजाजत देगी नहीं, लिहाजा दूसरी शादी होगी नहीं। लिहाजा इस्लाम गैर फिक्री बातें नहीं करता है। लिहाजा पहली बीवी से शादी की इजाजत लेना कोई इस्लामी तरीका नहीं है। पूछा गया दूसरा सवाल कि क्या उसको बताना जरूरी है। मिसाल तौर पर बीवी से छुप कर दूसरी शादी कर लिया, बीवी को नहीं बताया, बीवी को अगर वो नहीं बताएगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। तीसरा सवाल किया गया है कि क्या दूसरा निकाह करना सुन्नत है। इस बात को समझ लें, ये हम लोग मर्द लोग ये चक्कर चलाते हैं। पहली बीवी के होते हुए दूसरा निकाह जायज है, लेकिन हबीब का तरीका नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी, तीसरी, चौथी जो भी किया वो पहली बीवी के इंतकाल के बाद में किया है। लेकिन मर्द लोग औरतों को ये बताते नहीं, जब कभी कर लेते हैं, अरे दूसरी शादी करना सुन्नत है। दूसरी शादी करना सुन्नत नहीं बोलो, दूसरी शादी करना जायज है। दूसरी शादी सुन्नत कब है, जब पहली बीवी का इंतकाल हो जाए, तब दूसरी शादी कोई करे तो ठीक है, सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। पूछा गया है कि जब इल्म की इतनी फजीलत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म क्यों नहीं हासिल किया। आप समझते हैं कि इल्म नाम है मदरसे में और स्कूल में जाकर पढ़ने का, हम ये समझते हैं। इल्म नाम है जानने का। जानने के लिहाज से अल्लाह के रसूल कितना जानते हैं, जितना तुम सब मिलकर जानते हो उससे ज्यादा जानते हैं। तो उनके जाने ना जाने से, स्कूल ना जाने से उनके इल्म में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी शान दोबारा हुई। तुम मदरसे जाकर के भी नहीं सीख पाए, वो बगैर मदरसा जाए सीख लिए। तो इसमें शान क्या हो गई, बढ़ गई, कम नहीं हुई, बल्कि क्या हो गई, शान बढ़ गई। पूछा गया हजामा की शरई हैसियत क्या है। हजामा जानते हैं, जो खून निकालते हैं कप लगा करके। ये इसमें दो राय हैं। पहली राय ये है कि हजामा किसका सुन्नत की सुन्नत थी, लेकिन ये सुन्नत मतरूका है, छोड़ दी गई है। एक राय ये है। दूसरी राय ये है कि हजामा सुन्नत है, लिहाजा हजामा कराया जा सकता है। बहरहाल ज्यादातर लोगों की राय है कि हजामा सुन्नत है। पूछा गया है कि जब अजान होती है तो बाज लोग अंगूठा चूमते हैं, ये जायज है कि नहीं। देखिए, इस बात को समझ लें, अंगूठा चूमना की जो हदीस है वो हदीस सही नहीं है। एक ही हदीस है,
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, और वो हदीस लोगों ने गढ़ लिया है कि जब नबी के वसल्लम का नाम आता है तो मुंह को अंगूठे को चूमते हैं, फिर आंख को लगाते हैं। ये हदीस सही नहीं है। रहा ये कि कोई आदमी मोहब्बत में किसी वक्त कर लिया तो ऐसा नाजायज भी नहीं है। मोहब्बत में उसने कर लिया, सुन्नत समझ कर नहीं किया, बल्कि उसको अल्लाह के रसूल का नाम आया उसने कर लिया। अब इसकी बुनियाद पर लड़ाई करना ये उससे भी गलत बात है। तो सुन्नत नहीं है, हदीस सही नहीं है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी कोई आदमी कर लेगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये नाजायज है। पूछा गया है कि हमारे दांत में खला है और उसको रूट कैनाल करने के बाद कप लगा दिया गया है। कप लगा देते हैं, हमको भी लगा हुआ है, कप लगा देते हैं, मतलब ऊपर से ढांक देते हैं ढक्कन की तरीके से उस दांत को। तो उनका कहना यह है कि जब वजू करेंगे, गुस्ल करेंगे, तो उस जगह पर पानी नहीं पहुंचेगा, तो फिर इसका क्या हुक्म है? देखो, इसको याद रखें कि दांत के मामले में जो भी दांत लगाया जाता है, जो कप, वो दांत के हुक्म में हो जाता है। आप उस कप के ऊपर, उस ढक्कन के ऊपर पानी पहुंच गया तो या पानी पहुंच गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछा गया है कि इमाम जाफर की हदीस सुन्नी लोग क्यों नहीं बयान करते हैं? हमको अगर ये मालूम हो जाए कि इमाम जाफर सादिक की हदीस सही है तो हम बयान भी करते हैं और अमल भी करते हैं। लेकिन क्योंकि इमाम जाफर सादिक का नाम लेकर के सैकड़ों हदीसें लोगों ने क्या कर लिया, गढ़ लिया, इसलिए हम उसको बयान नहीं करते। जिनके बारे में हमारी तहकीक होती है हम उसको बयान करते हैं। पूछा गया है कि हमारे भाई को 2 दिन पहले एक साहब ने गोली मार दी और उनका इंतकाल हो गया। हम ये समझें कि अल्लाह ने उनकी तकदीर में इसी तरह मौत लिखी थी, यानी उनकी किस्मत में लिखा था कि गोली मारकर ही मारा जाए, तो मैं क्या समझूं? लेकिन ये बहुत ही हसास सवाल है, इसको गौर से सुन लें। एक आदमी अपने इल्म की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर एक बात कहता है। मिसाल के तौर पर एक गांव का आदमी जानता है कि बरसात में अगर काई पर आप चलेंगे तो क्या होते हैं, गिर जाएंगे। शहर वाले को ये बात इत्तेफाक से नहीं मालूम है। वो कहता है कि देखो बारिश हुई है, काई पर नहीं चलना वरना गिर जाओगे। उसने नोटिस ही नहीं लिया, वो काई पे चला, गिर गया। अब वो वहां पे आकर बोलता है कि हम तुम्हारी वजह से गिरे, तुमने हमको गिराया। ये सही बात है? उसने नहीं गिराया भाई, उसने अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक बात कह दी कि काई पर चलोगे तो गिर जाओगे। काई उसको कहते हैं, तो वो पूरी दुनिया सवाल तुलती, काई उसको कहते हैं जो हरी हरी जो है वो जमीनों पर लग जाती बारिश में। अब उसके ऊपर आप जाकर के केस कर दें कि इसने मुझे गिराया और फ्रैक्चर हुआ, ये ना बोलता तो हम ना गिरते, ऐसी बात नहीं है। उसने अपने मुशाहदे, अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये जुमला कह दिया कि भैया काई पर चलोगे तो गिर जाओगे। परवरदिगार आलम ने उसको गोली मारी गई, तुम ये समझ रहे हो कि अल्लाह ने कहा कि ये उसको गोली मारे, अल्लाह ने लाजिम किया गोली मारे? ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है, ये बात अगर मैं समझा ले गया तो आपको हजारों सवाल का जवाब समझा ले गया। अल्लाह ताला को कयामत तक के इस दुनिया में क्या होना है पहले दिन मालूम है। कयामत तक क्या होना है, कैसे होना है, उसके इल्म में सब कुछ है। अपने इल्म की बुनियाद पर लिख देता है कि इसको गोली मारी गई। अगर उसने इत्तला दे दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने गोली मरवाई है। बात मेरी समझे? अल्लाह ने अपने इल्म, अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह जुमला कह दिया, कहा कि भैया उसकी किस्मत में लिखा था। वो किस्मत में लिखने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने लिखा है कि गोली इसको मारी जाए। लोग गोली इसको मारेंगे, ये बात वो जानता है। कब? पहले दिन भी। उस पहले दिन की मालूमात की बुनियाद पर उसने जुमला बोल दिया, ये लिख दिया कि तेरी तकदीर में लिखा है कि तुझको गोली मारी जाए। इत्तला देना इस बात की दलील नहीं है कि वो काम कर रहा है। इत्तला देना इस बात की दलील है कि उसकी मालूमात की बुनियाद पर उसने। अब हम अगर तजर्बे की बुनियाद पर कहते हैं तो ये भी मुमकिन है कि काई पे चलें आप ना गिरें, जरूरी नहीं है, हो सकता ना गिरें, क्योंकि तजुर्बा फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह का इल्म कभी भी फेल नहीं हो सकता। लिहाजा उसने
قیامت تک کی جو باتیں تھی بتا دیا کہ ہم نے لکھ دیا ہے. جو کہتے ہیں نا تقدیر لکھ دیا ہے, اس نے مجبور نہیں کیا آپ کو کہ آپ کام کریں, بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے یہ بات کہہ دی ہے. پوچھا گیا ہے کہ جس نے میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی. یہ ایک حدیث ہے, حدیث ضعیف ہے. پھر دوسرے سوال میں آیا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. موجود نہیں ہونے کی کوئی دلیل ہو تو بتائیں. ایک اصول بتاتا ہوں, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کو دینا چاہیے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں حضور ہر جگہ موجود ہیں تو آپ دلیل دیجئے. میں تو دعویٰ کر ہی نہیں رہا ہوں, میں دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہوں. شرعی اصول بھی ہے کہ دلیل من ادعا, جو دعویٰ کرے دلیل وہ پیش کرے. تو آپ کو دلیل دینا چاہیے. ایک بات, حضور ہر جگہ موجود ہیں, یہاں موجود ہیں, وہاں موجود ہیں, یہاں موجود ہیں. سوال یہ ہے, دو جواب دے رہا ہوں. اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو معراج پہ جانے کی کیا ضرورت تھی, وہاں بھی موجود تھے. نہیں سمجھے بات. معراج پر گئے, آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, تو وہ وہاں بھی موجود تھے, تو یہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو وہاں موجود ہی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ, دوسری دلیل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میری قبر پہ آ کر کے درود پڑھتا ہے, سلام بھیجتا ہے تو میں سنتا ہوں, اور جب ہماری قبر کے علاوہ کہیں بھی پڑھتا ہے تو اللہ نے اربوں خربوں فرشتے لگا رکھے ہیں, وہ آ کر کے, آپ جیسے جمعہ کے دن آپ نے درود پڑھا, گاؤں میں بیٹھ کر درود پڑھا, وہ فرشتہ جو متعین ہے وہ فرشتہ جا کر کے اللہ کے رسول کو بتاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. سوال یہ کہ جب وہ یہاں موجود ہیں تو فرشتے کو ڈیوٹی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے وہاں سنتے ویسے یہاں بھی سنیں گے. تو یہ ایک صرف جو ہے وہ شرکیہ جملہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں. یہ ایک دم شرکیہ جملہ ہے. یہ شان ہمارے اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے, اپنے جاننے کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں, ہر جگہ موجود ہوں. اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہ بات کسی انسان, کسی نبی, کسی ولی کے قطعی ممکن نہیں ہے. اور اگر ممکن ہوتی تو اللہ کے رسول اللہ کو اتنے فرشتوں کو ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے رسول ہر جگہ درود آپ کا سنتے رہتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ یہ جملہ اس طریقے سے بولنا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے میں مدد کرتا ہے, کیا یہ جملہ بولنا صحیح ہے؟ ایک دم غلط ہے, ایک دم غلط ہے. ابھی اس کے پہلے جو میں نے بات آپ سے کی کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے گا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اس سے گناہ کروایا ہے. قیامت تک چونکہ جیسے کسی مووی کو خوب تیزی سے گھما دیا جائے, 3 گھنٹے کی مووی کو 3 منٹ میں گھما دیا جائے, ایک بندہ دیکھ کر کے ساری بات سمجھ جائے اور اس کے بولے اب اگلا سین یہ ہونے والا ہے, اب اگلا یہ ہوگا. یہ اس نے دیکھ لیا جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ اگلا ایسا ہوگا. اللہ نے قیامت تک کی ساری فلم گھما کر کے بتا دیا کہ ایسے ہوگا, لیکن اللہ نے تم کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تم یہ کام کرو. تو گناہ میں مدد کرنے کا جملہ بولنا ایک دم غلط بات ہے. پوچھا گیا ہے کہ گھر نیا بنایا ہے تو نیا گھر بنانے کے لیے کیا کام پہلے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گھر شروع کر دو. مطلب جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ قرآن خوانی ہوگی, پھر گھر کا افتتاح ہوگا. اب تو مرنے جینے میں, شادی میں, بیاہ میں, منگنی میں, سب جگہ میلاد پہلے پھر قرآن خوانی. نہ قرآن خوانی حدیث میں لکھا ہے, نہ قرآن خوانی لفظ کی عربی موجود ہے. یہ بھی مزے کی بات آپ کو بتا دیں, قرآن خوانی کی کوئی عربی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پوچھا کیا گھٹنے کے کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 1450 سال اسلام کو آئے ہوا, 1100-1200 سال ہندوستان میں ہو گیا. ابھی تک مسلمانوں کو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں معلوم ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ ہم نے بتایا اور نہ آپ کو جاننے کا شوق رہا کہ آپ بچپن سے یہ باتیں جانتے. میں بھی بچپن میں گاؤں میں یہی مشہور, گھٹنا کھل گیا وضو ٹوٹ گیا. بھائی گھٹنا سے وضو کا کیا تعلق ہے؟ گھٹنا تو آپ نے دھویا بھی نہیں وضو میں, اس کے کھل جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا. پوچھا گیا ہے کہ اگر لنگی کے اندر انڈر ویئر نہیں پہنے
تو क्या नमाज नहीं होगी? फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि लुंगी में मियानी नहीं होती है, मियानी का उससे कोई था। सतर का ढकना नमाज में जरूरी है, सतर का ढकना नमाज में जरूरी है। बोरा से ढांक लो, है, कपड़े से ढांक लो, कंबल से ढांक लो, जितना चीज से ढांक लो, नमाज हो जाएगी। पूछा गया है कि वजू के बचे हुए पानी की बहुत फजीलत बताती है। इस पर कोई हदीस भी है नहीं, इस पर कई हदीसें हैं। वजू के बाद जो पानी बचता है, अब आजकल तो आप नल से करते हैं तो पूरी टंकी हो गई बची हुई, वरना हकीकत यह है कि लोटे से वजू अगर किया जा रहा है और उसके बाद आपने जो पानी बच गया आखिर में, उसकी बहुत फजीलत बहुत सही हदीसों में आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई मारी गई है, बल्कि हदीस की फजीलत मौजूद है। पूछा गया है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं था, आपका क्या अकीदा है? हम 3 बातें बुनियादी बताना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म था, लेकिन अल्लाह के बराबर नहीं था। नंबर 1, बहुत कुछ था, कितना था उसका भी हम दायरा नहीं खींच सकते, जो दायरा खींचे वो भी बड़ा बेवकूफ है। लेकिन अल्लाह के बराबर था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह है, कहता है मैं ये जानता हूं, अल्लाह कहता है मैं ये जानता हूं कि दरख्त कितने हैं और दरख्त में पत्तियां कितनी हैं। एक दरख्त में कितनी पत्ती, आप एक डाली की पत्ती नहीं जानते हैं। वो कहता है मैं दुनिया के दरख्त जानता हूं और उनकी पत्तियां भी जानता हूं। लिहाजा अल्लाह के बराबर हुजूर को इल्म कतई नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो था वो खुद से नहीं था। अल्लाह के इल्म में और बंदे के इल्म में फर्क है। हाँ, हम एक आलिम हैं, हमको बताया गया तो हम जान गए। अल्लाह किसी बताने का मोहताज नहीं, वो खुद से जानता है। इसलिए फारसी में अल्लाह को खुदा कहते हैं। खुदा का मतलब जो खुद से खुदा है, तुम्हारे बनाने से, तुम्हारे ओढ़ देने से नहीं बना है, बल्कि वो खुद से खुदा है। ये दूसरी चीज है कि उसका इल्म अल्लाह का खुद से है। हमको जो कुछ मिला है, इंसानों को जो कुछ मिला है, जिसको बहुत कुछ मिला है, वो अल्लाह के बताने से मिला है। और तीसरी चीज, क्या अल्लाह ने सब कुछ नबी को बता दिया है? ये बात भी एकदम गलत है। अल्लाह ने कतई नहीं बताया सारा इल्म। वो अल्लाह है, उसने जो मुनासिब समझा सबसे ज्यादा रसूल अकरम को बताया, फिर बहुत से लोगों को बताया, बहुत सी चीजों को बताया। चूंटी को बताया शक्कर रखी कहाँ है। चूंटी को ये मालूम रहती है कि शक्कर कहाँ रखी हुई है। तुम अपने आप को बहुत बड़े हीरे बनते हो, तुमको नहीं मालूम होता, तुम एक एक ढक्कन खोल खोल के देखते हो कि शक्कर कहाँ है। और चूंटी बगैर ढक्कन खुले हुए, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको वो सूंघने की सलाहियत दे दी है कि आप ढक्कन को टाइट करके रखें, उसके बावजूद उसे मालूम हो जाता कि मीठा कहाँ रखा हुआ है। अल्लाह दे देता है। ज्यादा अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ दिया, लेकिन सब कुछ दिया गलत बात है। पूछा गया किराए के मकान में जो एडवांस पैसा मिलता है, क्या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछा गया है कि अगर वजू बाथरूम में किया जाए तो दुआ बाथरूम में पढ़ सकते हैं? दुआ बाथरूम में नहीं पढ़नी चाहिए। पूछा क्या घर में शौक के तौर पर फोटो वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं? कोई फोटो नजर आए ये इस्लाम में जायज नहीं है। आप उठाकर कमरे में रखे हों, बॉक्स में रख ले, आप डायरी में रखे हों, वो एक अलग मसला है। लेकिन शोकेस में सजा देना, रूम में लगा देना, हॉल में लगा देना, ये नहीं है। फिर कहा गया है कि मौलाना साहब सुनते हैं कि जहां पे फोटो होते हैं वहां फरिश्ते नहीं आते हैं, तो जिनके घरों में फोटो है तो वहां मलकुल मौत कैसे जाते हैं? समझे नहीं समझे बात? कि भाई जब मलकुल मौत फरिश्ता है, जब फोटो लगाने से फरिश्ता नहीं आता है तो वो तो बंदा बचा रह गया, अपने घर में लगा दिया उसने फोटो, सेफ है। लेकिन इसका जवाब सुन लें। कहा गया है जहां फोटो होता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कुत्ते के बारे में है कि जिस घर में कुत्ता होता है वहां भी फरिश्ते नहीं आते। तो एक आलिम से पूछा गया किसका मतलब अगर कुत्ता लेकर आदमी साथ चले तो वहां मलकुल मौत नहीं आएगा? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुत्ते की जान लेने वाले जो फरिश्ते आते हैं वो उसके लिए भेज दिए जाते हैं।
भाई कुत्ते की भी तो जान लेने के लिए कोई ना कोई है ना। उन्होंने कहा जो कुत्ते की जान निकालते हैं वो इसकी जान निकाल लेते हैं, लिहाजा समझना चाहिए। पूछा गया है कि सजदे शुक्र और शुक्राने की नमाज में क्या फर्क है। नमाज नमाज है, सजदे शुक्र है। एक आदमी को कोई खुशी लाहक हुई, उसने उसी वक्त अल्लाह के आगे सजदा कर दिया। इमाम आजम अलैहिर्रहमा कहते हैं कि सजदा अकेला कोई चीज नहीं है, जब भी करें नमाज के साथ, शुक्राने की नमाज ही को बोलते हैं, ये सजदे शुक्र है। कभी कभी अरबी जबान में, कभी कभी कुरान में सजदा बोला जाता है, पूरी नमाज मुराद होती है। क़याम बोला जाता है, पूरी नमाज मुराद होती है। लिहाजा जहां पर सजदे शुक्र की बात है वो कहते हैं इससे मुराद नमाज है, और दूसरे लोग कहते हैं कि सजदा अलग चीज है, नमाज शुक्राना अलग चीज है। लेकिन ये समझना है कि मैं सजदा कर लिया तो शुक्राने की नमाज अदा हो गई, गलत बात है। पूछा गया है कि डिलीवरी के कितने दिन के बाद मियां बीवी मिल सकते हैं। 40 दिन तक डिलीवरी के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। अगर 40 दिन तक खून आता रहा, वो खून आने तक बीवी मियां नहीं मिल सकते हैं। अगर 41वें दिन खून आ गया तो फिर ऐसी शक्ल में अब ये बीमारी है, मिला जा सकता है। और अगर 10 दिन के बाद बंद हो गया तो भी मिला जा सकता है, कोई कैद नहीं है शरीयत में। पूछा गया है कि कोरोना में मरने वालों का क्या हुक्म है और बगैर गुस्ल के तदफीन हो रही है, क्या ये सही है। अगर सरकारी तौर पर पाबंदी नहीं हो तो फिर ऐसी शक्ल में कोरोना के मरीज को गुस्ल देना चाहिए, और अगर गुस्ल नहीं देने दिया जा रहा है जबरदस्ती, तो कम से कम मरीज को तयम्मुम करा देना चाहिए। मैयत को, मरीज नहीं, मैयत को तयम्मुम करा देना चाहिए, कम से कम ये जरूर होना चाहिए। ये जो हो रहा है बगैर गुस्ल के पैक कर देना, जिस वक्त वो आपको बुला करके कहें कि आपका बंदा मर गया है, अब हम इसको नहीं खोलने देंगे, उसी वक्त उसको तयम्मुम करा दें। जैसे तयम्मुम होता है वैसे तयम्मुम करा दें मजबूरी दर्जे में, लेकिन ये इस्लामी तरीका नहीं है। पूछा गया क्या ज़कात की रकम दूसरा निकाल सकता है, यानी बाप के बेटे के ऊपर ज़कात फर्ज है, बाप ने निकाल दी, बीवी के ऊपर ज़कात है, शौहर ने निकाल दी। किसी की ज़कात कोई निकाल सकता है, शर्त यह है कि आप उसको इत्तला दें कि भाई तुम्हारी ऊपर इतनी ज़कात बन रही है, मैं निकाल दे रहा हूं। वो ठीक है, अच्छा निकाल दो, ये मुमकिन है। बगैर बताए हुए अगर आपने निकाला तो ज़कात अदा नहीं होगी, इसको नोट कर लें। पूछा गया है कि नमाज में एक आदमी ने जबान से नियत नहीं की, जैसे आप कहते हैं मैं 2 रकात नियत करता हूं फला फला, जबान से नियत की कोई शरई हैसियत नहीं है। आप वजू किए इशा की नमाज पढ़ने की नियत से, क्योंकि वजू गजल सुनने के लिए नहीं किया जाता है। आपने नियत किया कि मुझे नमाज पढ़नी इशा की, आपकी नियत हो गई, खत्म बात। ये जबान पे जो हमको मकतब से सिखाया जाता है, ये सुन्नत तरीका नहीं है। बाद लोगों ने इसको बिदअत कहा और कुछ लोगों ने नाजायज कहा। हमारे उलमा ने ये कहा कि अगर कोई जबान से कह लेता है तो जायज है, लेकिन सुन्नत नहीं समझना चाहिए, ये सुन्नत तरीका नहीं है। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। एक दूसरी जरूरी बात जो है, बल्कि मुझे जिंदगी में बहुत कम इतने बड़े सदमे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इत्तला आई है कि हमारे दोस्त जो है वो शारजा में रहते थे, अनीस अंसारी साहब, यहाँ भी आपके गांव भी जो है वो सनखरी आ चुके हैं इस प्रोग्राम में शिरकत की। अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो गया है। बहुत ही सरपरस्त की हैसियत थे, मैं उनको बाप की तरह मानता था और वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। आपकी सोसाइटी फलाहुल मुस्लिमीन के लिए बहुत मदद करते थे। हम उसको जबान से न बता सकते हैं और न कभी उनके एहसान को हम अदा कर सकते हैं। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से, क्योंकि सवाल जवाब की जो नशिस्त होती है इसको लाखों लोग क्या है सुनते हैं, मैं अपने तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि जो भी हमारी इस बात को सुने वो अनीस अंसारी साहब के लिए जरूर दुआ करें
کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. ان کی اہلیہ محترمہ ہیں, میں ان کو آپا کہتا ہوں, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر عطا فرمائے, ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. جو ان سے لرزشیں ہوئی ہوں بشری تقاضے کے تحت, اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو میں اپنے تمام سننے والوں سے کہ ضرور سے ضرور ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ, ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر جلیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.